Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Today we are going to start with another topic from the same chapter, that is improvement in food resources. Okay. So in that we are going to deal with next topic, that is crop production management. In the last lecture we have studied about crop improvement techniques, hybridization and all. Okay, factors which are essential for which the crop improvement is done basically. वो सारा हमने cover किया था. Now we are going to start with crop production management. Crop production management में we need to deal with what? Different strategies which are basically necessary, useful for the cultivation, for the production of crops, right? So basically what are the requirements which are necessary for a plant in order to grow? Requirements क्या रहेगा जिस वजह से plants जो है cultivate हो पाएंगे अच्छी तरह, ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रोडक्शन होगा, yield होगा. न्यूट्रिएंट्स की अवेबिलिटी, ओके, न्यूट्रिएंट्स की अवेबिलिटी रहेगी. सो वी नीड टू डिस्कस अबाउट व्हाट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट. व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स विच आर बेसिकली रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स इन ऑर्डर टू ग्रो, in order to give you the good production. Then secondly, second need of the plant is irrigation, that is availability of water, supply of water. So natural sources are already available, obviously, through which plants can get proper water, right? Water supply. But if there is scarcity of water in some cases, obviously in some situations, then we require another strategy through which plants could get sufficient amount of water. Okay, so that's why we need to study about irrigation process, irrigation techniques. Then thirdly, we also need to study about different cropping patterns, okay, by which method we can grow a particular plant or a crop in order to get good production, right? So that we are going to deal with now. So basically production of crops or production practices could be carried out, can be carried out at different stages or different levels, है ना. अब वो फार्मिंग में आपका नो कॉस्ट फार्मिंग हो सकता है, लो कॉस्ट फार्मिंग हो सकता है, और एल्स हाई कॉस्ट फार्मिंग भी हो सकता है, हम कैरी आउट कर सकते हैं. डिपेंड्स ऑन द अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और द टेक्निक्स और द मेथड्स विच वी आर यूजिंग. अब नो कॉस्ट प्रैक्टिस बोला है, नो कॉस्ट बहुत कम चांसेस है ऐसा, मिनिमम समथिंग वी हैव टू स्पेंड, ओके, इन ऑर्डर टू गेट द गुड रिजल्ट्स फ्रॉम द क्रॉप्स. फाइन. Then low cost management practices could also be, we can carry out by cheap methods or cheaper processes, but which could give you the good production. Then high cost farming practices involves large amount of money, or you can say expenditure is more, right? It is expensive type of farming in which we need to what? Spend more to get the large quantity of products from the plants or the crops. Okay, तो high farming भी हो सकता है, depends what we are using. For example, if we are using chemical fertilizers in a large amount, तो obviously they are what? Expensive. तो जितना ज़्यादा expensive रहेंगे उतना ज़्यादा हाई कॉस्ट होगा उस फार्मिंग का, ठीक है, उस प्रैक्टिस का. बट इफ़ यू आर गेटिंग वेरी लेस प्रोडक्शन इन दैट हाई फार्मिंग, हाई कॉस्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस, सो व्हाट्स द यूज ऑफ यूजिंग दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेथड, राइट? इट विल नॉट बी सो मच बेनिफिशियल टू यूज हाई कॉस्ट फार्मिंग, ठीक है. सो दैट इज़ वाई वी कैन यूज मिक्सचर ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिसेस in which we can spend minimum amount of money and get maximum amount of production. Is that clear? So first we will discuss about nutrient management. So as the word says, nutrients का meaning ये होता है what? Proper supply of what? Some minerals, है ना? That is nothing but nutrients. In case of what? Plants also. We also require nutrients. हमें भी nutrients की ज़रूरत पड़ती है, you already know, right? हमें carbohydrates, proteins, lipids या fats, vitamins, minerals, इन सभी की ज़रूरत पड़ती है, right? To get the energy. In the similar manner, even plants or our crops also requires what? Nutrients. अब उसके basis पे इनके types अलग अलग हो जाते हैं, macronutrients and micronutrients, ठीक है. If we talk about macro, तो word itself says, macro का meaning ये होता है आपका क्या? Large, okay, large amount, in large amount. So obviously the nutrients which are required in large quantity, in large amount, but basically by
plants, because since we are studying about dealing with plants only, crops के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो न्यूट्रिएंट्स है विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी बाय व्हाट, बाय प्लांट्स ओनली, बाय क्रॉप्स, सच टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर नोन एज व्हाट, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. सेकेंड कैटेगरी की बात करोगे तो दैट इज माइक्रो. माइक्रो का मीनिंग ये होता है व्हाट, स्मॉल. सो इन स्मॉल अमाउंट और स्मॉल क्वांटिटी द न्यूट्रिएंट्स which are required by the plants in very small quantity, small amount, such type of nutrients are known as micronutrients. Okay, तो ये दोनों ही nutrients जो है obviously basically required by the plants according to its needs. But obviously बात है, चाहे आप large amount बोलो, small amount बोलो, it is basically required by the crops or the plants. Then other sources, अब ये जो macro and micronutrients हमने बोला है, obviously these are provided by what? सॉइल से ही मिलेगा प्लांट्स को. सॉइल में जो है न्यूट्रिएंट्स रहने वाला है, मिनरल्स रहने वाले हैं. ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में रहेगा, कुछ स्मॉल क्वांटिटी में रह सकता है. ठीक है, एंड अदर न्यूट्रिएंट्स और यू कैन से अदर एलिमेंट्स विच आर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन, फॉर द ग्रोथ, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड थ्रू दी अदर सोर्सेज सच एज एयर एंड वाटर. राइट, अभी कार्बन डाइऑक्साइड जो मिल रहा है प्लांट्स को, ठीक है, दैट इज बेसिकली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ओनली. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दी एटमोसफियर. सो एयर से मिल रहा है, वाटर H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, उससे ऑब्टेन हो रहा है. तो ऐसे डिफरेंट हमारे पास सोर्सेस हैं. फाइन, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं सोर्सेस एज वेल एज देयर न्यूट्रिएंट्स. तो एयर की बात करें तो कार्बन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट. वाटर की बात करें H2O, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सॉइल की बात करो तो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया अबाउट मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स. सो मैक्रो एलिमेंट्स के अगर आप ग्रुप देखोगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन बोल सकते हो आप, राइट, नाइट्रोजन. NPK जो है बेसिकली दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. दीज आर रिक्वायर्ड इन वेरी लार्ज अमाउंट बाय प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ एज वेल एज डेवलपमेंट. ठीक है, तो नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर. ओके, these are the elements or the nutrients which are required in very large amount by the plants. माइक्रो की बात करोगे, स्मॉल अमाउंट में जो है न्यूट्रिएंट्स एक पर्टिकुलर प्लांट को ज़रूरत लगेगी इन ऑर्डर टू ग्रो. दैट आर व्हाट, अनदर 7 एलिमेंट्स. यहाँ पे आप देखोगे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर. टोटल हाउ मेनी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल? 6. ठीक है, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करोगे तो टोटल 7 न्यूट्रिएंट्स और एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड बाय दी प्लांट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट. तो उसमें एग्जाम्पल्स कौन से रहेंगे? आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, molybdenum and chlorine. Okay, so these are the examples of micronutrients which are required by the plants in very small amount, small quantity. Okay, but it is required by the plants for their proper growth as well as production. Okay, development, growth, higher production, higher yield, इसके लिए ये सभी nutrients की requirement रहती है. And basically we know these are provided by what? Soil. ठीक है. Now what will happen if there is certain nutritional deficiency, or you can say when the nutrients are depleted from the soil. So obviously अगर soil का depletion, nutrients का depletion हो जाता है soil के अंदर, so plants जो है uptake कर रहे हैं nutrients वो कहाँ से करेंगे? ठीक है, so they might be facing what? Deficiency. ठीक है, depletion हो जाएगा, या depletion in the sense what? ख़त्म होना. Okay, अगर nutrients का supply बहुत ज़्यादा कम हो गया, स्लो हो गया, इट्स ओके, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि हम अगर मिनिमम यूटिलाइजेशन फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स का कर रहे हैं अगर, सो नेचुरल तरीके से जो है अपटेक जो होता है आपके न्यूट्रिएंट्स का बाय द प्लांट्स इज़ वेरी स्लो, बट स्टिल इट कैन एबल टू ग्रो, राइट. तो वैसे डिपेंड करता है हम किसकी बात कर रहे हैं, वेदर वी आर गोइंग टूवर्ड्स द ऑर्गेनिक फार्मिंग और जस्ट यूजिंग द केमिकल फर्टिलाइजर्स, डिपेंडिंग ऑन दैट. सो डेफिशिएंसी अगर हो गई न्यूट्रिएंट्स की तो इट कैन अफेक्ट व्हाट? overall physiological processes which are taking place या carrying out inside a plant body. Okay, जैसे हमारी बॉडी में भी अगर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो गई, then we can suffer from various certain disorders, right? certain disorders हमें हो सकते हैं, diseases हो सकता है, विटामिन डेफिशिएंसी, मिनरल डेफिशिएंसी हो गया तो ऑब्वियस सी बात है हमारी बॉडी वीक हो जाएगी. ठीक है, एनर्जी लेस रहेगी. तो इन द सिमिलर मैनर प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर्ड प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स. अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा? प्लांट की जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है सच एज ग्रोथ, डेवलपमेंट, इवन रिप्रोडक्शन एज वेल एज यस ससेप्टिबिलिटी टू डिजीजेस. ससेप्टिबिलिटी, ओके, ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पर? सेंसिटिव. ओके, ससेप्टिबल मीन्स व्हाट? कि अगर न्यूट्रिएंट विल बी लैकिंग बाय द प्लांट्स
तो उसको जो बैक्टीरिया या कोई वायरस है, फंगस है, जो भी पैथोजेंस है, हार्मफुल माइक्रोब्स, दे कैन ईजिली डिस्ट्रॉय। तो वो डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको अफेक्ट कर देगा, उसको डिजीज़ कॉज कर देगा, तो प्रोडक्शन तो हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। ओके, तो वो चीज़ होना नहीं चाहिए। सो दैट इज़ वाई न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी प्लांट्स को नहीं होनी चाहिए। तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लाई शुड बी मस्ट। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, टू इंक्रीज द यील्ड सॉइल कैन बी एनरिच्ड बाय एडिंग द न्यूट्रिएंट्स। ये तो कॉमन सा पॉइंट है। ओके, इफ वी नीड टू इंक्रीज द यील्ड, यील्ड इज नथिंग बट व्हाट, प्रोडक्शन, है ना, प्रोडक्शन की ही बात हो रही है। अगर क्रॉप का प्रोडक्शन या यील्ड बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो ऑब्वियसली क्या होगा, क्या हो सकता है, अगर क्रॉप प्रोडक्शन ही कम हो गया तो वी विल नॉट बी एबल टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन, है ना। पॉपुलेशन का जो नीड है, जो जितने टन्स में उनको क्रॉप का प्रोडक्शन चाहिए, क्रॉप्स चाहिए, ठीक है, डिफरेंट फ्रूट ग्रेन्स चाहिए, सो उसकी अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम, बिकॉज वो प्लांट्स ही नहीं है, क्रॉप्स ही नहीं है जो वो फूड ग्रेन्स हमें दे पाए, राइट। सो दैट इज़ वाई ऑब्वियसली क्रॉप का जो यील्ड है, प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। फाइन, सो टू इंक्रीज द यील्ड सॉइल कैन बी एनरिच्ड बाय एडिंग व्हाट, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स। अभी न्यूट्रिएंट्स हम किस फॉर्म में दे सकते हैं प्लांट्स को, अभी डायरेक्टली आपने अभी जो एग्जांपल देखा आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो वो तो जो न्यूट्रिएंट्स है या एलिमेंट्स है वो सॉइल के अंदर से ही ले रहा है एक प्लांट, फाइन। बट यहाँ पर क्या बोला गया, अब बहुत ज़्यादा आपको एनरिच करना है सॉइल को, एनरिच करना इन द सेंस व्हाट, सॉइल इज बेसिकली रिच्ड विद ऑल दिस पर्टिकुलर एलिमेंट्स और द न्यूट्रिएंट्स, बट हमें उसकी अवेलेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ानी है, तो एक्स्ट्रा वी नीड टू ऐड समथिंग, फाइन। सो दैट आर नोन एज व्हाट, मैन्योर्स एज वेल एज फर्टिलाइजर्स। तो इन दोनों की अगर हम बात करें, वी आर यूजिंग बोथ मैन्योर एज वेल एज फर्टिलाइजर। बट अगर आप फर्टिलाइजर की बात कर रहे हो तो इट इज़ बेसिकली वी आर कंसिडरिंग इट एज व्हाट, नॉट कंसिडरिंग, वो होता ही क्या है, केमिकल्स होते हैं, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स। एंड मैन्योर्स जो है आपका वो क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस से जो है प्रिपेयर होता है, फाइन। तो विच वन इज़ बेटर टू यूज़, मैन्योर, राइट, नेचुरल वन। तो मैन्योर में आप क्या कौन सा सब्सटेंसेस यूज़ कर रहे हो, नेचुरल सब्सटेंसेस ओनली यू आर यूजिंग, राइट। जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, काउडंग हो गया, ठीक है, अनदर फूड वेस्ट हो गया, फाइन। तो ये सब जो है आप यूज़ करते हो, एक प्रॉपर फील्ड में आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है, इन अ पिट, सो दैट यू कैन प्रिपेयर द मैन्योर्स इन एन वेरी इफेक्टिवली मैनर एंड यू कैन यूज़ इट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। वो प्रोसेस थोड़ा स्लो रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज द अपटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इज़ वेरी स्लो व्हेन वी आर यूजिंग मैन्योर्स to increase the production, okay. And if we are using chemical fertilizers, so since it is present when we are using it, it can easily dissolve in the water, okay. वो soluble हो जाता है water के अंदर, तो जितना ज़्यादा solubility उसकी रहेगी उतना ज़्यादा water के साथ में ही वो लेगा ना, ठीक है, minerals को भी, तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा fast हो जाएगा, है ना, it will get fasten up if we are using chemical fertilizers। तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए तो ऑब्वियस ही बात है ज़्यादा प्रोडक्शन दे देगा केमिकल फर्टिलाइजर, बट फॉर अ लॉन्ग टर्म इफ़ यू आर कैरिंग आउट द प्रोडक्शन, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक डिसएडवांटेज रहेगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिए इफ़ वी आर यूजिंग दिस न्यूट्रिएंट्स, तो वी मस्ट यूज मैन्योर्स रादर देन यूजिंग द केमिकल फर्टिलाइजर्स, बिकॉज केमिकल फर्टिलाइजर्स जैसा हमने अभी डिस्कस किया कैसे रहते हैं, सोल्यूबल रहते हैं वाटर के अंदर, ठीक है, तो उनके चांसेस ज़्यादा है कि इट कैन फ्लो एंड इट कैन ऑल्सो पोल्यूट दी वाटर, फाइन। तो वाटर पोल्यूशन कॉज कर सकता है। अब वाटर के अंदर ऑब्वियसली वाटर बॉडीज़ के अंदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो लिविंग, एक्वेटिक प्लांट्स आर देयर, एनिमल्स आर देयर, राइट। तो उनका लाइफ क्या हो जाएगा, दैट विल बी इन डेंजर, है ना, इट विल गेट किल्ड। सो दैट इज़ वाई मैन्योर्स आर मच मोर सेफर एज कम्पेयर टू केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। अब इसके ही बारे में थोड़ा सा हम जनरल जो है चीज़ें देखेंगे अबाउट दी मैन्योर्स। So basically manures are what? It contains organic matter, है ना, organic matter का presence है यहाँ पर, that means we are using what? Natural materials only for the degradation, so that it will get converted into what? Much usable form by the plants, okay. It is prepared by the decomposition of natural materials, जैसा अभी हमने बोला decomposition, degradation किसका होता है, animal excreta एज वेल एज प्लांट वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, ठीक है, काउडंग एक्सक्रीटा जो हमने बोला, एनिमल एक्सक्रीटा, वेस्ट ऑफ द एनिमल्स, फाइन। तो ये सब जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट आर नथिंग बट व्हाट,
नेचुरल थिंग्स, नेचुरल मटेरियल्स, तो उनका जब डिकम्पोजिशन होगा, दैट इज कॉम्प्लेक्स मटेरियल विल गेट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स, ठीक है। तो ये किसको प्रिपेयर कर, मतलब क्या प्रिपेयर कर रहे हैं हम इस चीज़ से, मैन्योर्स, फाइन। इट एनरिचेस सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर विच विल अल्टीमेटली गोइंग टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ओके, सॉइल जितना ज़्यादा फर्टाइल रहेगा उतना ज़्यादा मैक्सिमम ईल्ड या क्रॉप का प्रोडक्शन आपको मैक्सिमम मिलेगा। जितना सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस होती जाएगी, है ना, उतना कम प्रोडक्शन होगा, बिकॉज सॉइल की फर्टिलिटी अगर लॉस्ट हो गई बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स एंड ऑल, तो वी आर नॉट गोइंग टू गेट गुड रिजल्ट्स, ठीक है, गुड प्रोडक्शन। सो दैट इज़ वाई फर्टिलिटी जो है सॉइल की वो इम्प्रूव होना चाहिए रादर देन रिड्यूसिंग। Okay, so that is one of the major advantage of using the manure rather than the chemical fertilizers. Okay, organic matter improves the soil structure, increasing the water holding capacity. Okay, water holding capacity of the sandy soils. अभी water holding capacity जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा हम plants को उस particular field में या उस जहाँ जिस भी soil के अंदर grow करवा रहे हैं उतना ज़्यादा water का uptake करवा पाएंगे, right? Water holding capacity अगर कम रहेगी उस soil के अंदर तो ऑब्वियस सी बात है वाटर इन अ सफिशिएंट अमाउंट विल नॉट बी अपटेकन बाय द प्लांट रूट्स, ठीक है। सो दैट इज़ वाई ये भी चीज़ें किससे पॉसिबल हो सकता है, बाय यूज ऑफ मैन्योर्स, है ना। केमिकल फर्टिलाइजर से उतना नहीं रहेगा एज कम्पेयर टू द मैन्योर्स। इन क्लेली सॉइल्स द ऑर्गेनिक मैटर हेल्प इन ड्रेनेज टू अवॉइड दी वाटर लॉगिंग, है ना। किसी एरियाज में हो जाता है वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम, ठीक है, एक ही जगह पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। सो तो प्रॉपर ड्रेनेज एंड व्हाट यू कैन से टू अवॉइड द वाटर टू गेट accumulated at one place, ठीक है, this manures could help। तो manures हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। manures minimizes the fertilizer use and recycles farm waste which ultimately protect the environment, right? because इसमें हम natural materials का यूज़ कर रहे हैं तो it could not harm the environment also as well as उसकी recycling भी होगी, ठीक है, because as we are using natural materials, ठीक है। और क्या हो सकता है, ये cheaper method हो सकता है, ठीक है, it is cheap to prepare rather than preparing the chemical fertilizers. Chemical fertilizers का preparation के लिए you require what? Expensive methods, है ना। उसमें factories में आप जो है उसका production carry out करवा रहे हो, पहले तो fertilizer बना रहे हो, उसके बाद उसको use करवा रहे हो, ठीक है। But if we are using the manures, तो you can prepare it in the fields, okay? You can prepare it in the fields. अब इसके types अगर हम देखें, types of manures, तो based on the biological material which we are using, कौन सा मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, कौन सा नेचुरल मेथड आप यूज़ कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्योर्स। तो फर्स्ट इज़ व्हाट, कंपोस्ट, सेकंड इज़ वर्मी कंपोस्टिंग। अभी कंपोस्टिंग में हमको पता है हम खाद का जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ नथिंग बट बाय यूजिंग द सेम नेचुरल प्रोसेस ऑफ मेकिंग द मैन्योर्स। तो इसमें हमको पता है प्रोसेस इन विच फार्म वेस्ट मटेरियल्स सच एज लाइफ स्टॉक एक्सक्रीटा, वही हमने जो बोला अभी, एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंक, ठीक है, वेजिटेबल वेस्ट, एनिमल रिफ्यूज़ मीन्स रिमेन्स ऑफ द एनिमल्स ओनली, ठीक है, वो यूज़ कर सकते हैं। डोमेस्टिक वेस्ट विच आर जनरेटेड बाय द किचन, है ना, होम वेस्ट जो रहता है हमारा, दैट इज़ बेसिकली वेजिटेबल पील्स एंड ऑल, है ना, जो भी वेस्ट जो हमें किचन से प्रोड्यूस होके आता है, ठीक है, फ्रूट पील्स, वेजिटेबल पील्स एंड ऑल, जो भी नेचुरल मटेरियल्स है दैट कम्स अंडर डोमेस्टिक वेस्ट। सीवेज वेस्ट, अब सीवेज भी जो रहने वाला है ऑब्वियसली ख़राब पानी रहेगा, गंदा पानी रहेगा, जिसको सीवेज ट्रीटमेंट इज़ नेसेसरी, बट अब उसमें से भी जो है कुछ हम जो वेस्ट मटेरियल्स है, ठीक है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, कंपोस्ट, फाइन। स्ट्रॉ, इरेडिकेटेड वीड्स, इवन इरेडिकेटेड वीड्स जो अनवांटेड प्लांट्स वगैरह होते हैं जिनका कुछ ऐसा यूज़ ही नहीं होता है, ठीक है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं टू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, कंपोस्ट। सो दिस ऑल सब्सटेंसेज आर डिकम्पोज्ड इन पिट्स and which is forming what, compost, and that process of making the compost by using the natural materials is known as what, composting, ठीक है। अब उसी मेथड को थोड़ा सा और आप क्या कर दोगे, थोड़ा सा और एनरिच करवा दोगे उसको, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ यूजिंग सम other way, okay, so other thing, so that is nothing but by the use of some living organism only, such as what, earthworms। अब earthworms का आप यूज़ कर रहे हो in the same compost, so that method is known as what, vermi composting। हाँ, तो यहाँ पर देखो आप लिखा है compost is rich in, compost का ही और अगर हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखें तो ऑब्वियसली इट विल बी एनरिच्ड विद सर्टेन न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। एंड अर्थवॉर्म का जब आप यूज़ कर रहे हो उसी कंपोस्ट में, सो एज टू फास्टन द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट,
दैट इज़ नोन एज वर्मी कंपोस्ट. ग्रीन मैन्योर नेक्स्ट टाइप की अगर आप बात करते हो, ग्रीन मैन्योर एज द नेम सेज कि कुछ ऐसे प्लांट्स हो सकते हैं, ठीक है, लाइक सन, हेम्प और गुआर. इसको आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यू कैन यूज़ इट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मैन्योर्स. क्योंकि हम जो प्रोडक्शन करवा रहे हैं क्रॉप का, उसमें तो हम वेस्ट मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं मैन्योर के प्रिपरेशन के लिए. बट ग्रीन मैन्योर में आप प्लांट ही यूज़ कर रहे हो, बट स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लांट्स जिसको डायरेक्टली हम हमारे कंपोस्टिंग या जो प्रिपरेशन है आपका मैन्योर का, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, राइट, एज अ मल्चिंग. दिस ग्रीन मैन्योर एनरिचेस द सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. अभी ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस अगेन जो मेजर माइक्रो क्या है, नॉट माइक्रो, कौन से न्यूट्रिएंट है ये, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट. तो आप देखोगे कि जो हम मैन्योर यूज़ कर रहे हैं उससे भी अल्टीमेटली हम न्यूट्रिएंट्स का ही क्या करवा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स का ही प्रिपरेशन करवा रहे हैं, ठीक है, बेसिकली टू द प्लांट्स. फाइन. सो दीज आर सर्टेन टाइप्स. दीज आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड न्यूट्रिएंट्स. ये किसकी बात हो रही है अब, कमर्शियली प्रोड्यूस्ड न्यूट्रिएंट्स. अनदर type of nutrient containing substances only, that is fertilizers. But since it is made up of chemicals, तो इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज ज़्यादा रहेगा as compared to the manures. Okay, manures जो है आपका स्लो प्रोसेस रहेगा, बट आपका केमिकल फर्टिलाइजर का अगर आप यूज़ करते हो तो वो प्रोसेस को क्या कर देगा, थोड़ा सा हेस्टेन कर देगा, थोड़ा फास्ट कर देगा, ठीक है, आपको शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन मिल जाएगा. फाइन. तो ये सारे कुछ उसके एडवांटेजेस हो जाएंगे. बट वही अगर आप थोड़ा उसका डिसएडवांटेज की बात करोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए वो आपकी सॉइल की टेक्सचर, सॉइल की क्वालिटी, सॉइल का जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है, फर्टिलिटी है, उसको सब डिक्रीज कर देगा. ओके. सो फॉस्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, NPK जो है, राइट, NPK, दीज आर व्हाट, मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स विच आर सप्लाइड बाय दी फर्टिलाइजर्स. तो फर्टिलाइजर बेसिकली इन्हीं न्यूट्रिएंट से बन रहा है. तो आप सोचोगे कि ये न्यूट्रिएंट्स तो सप्लाई कर ही रहा है, बट उसका डिसएडवांटेजेस है बिकॉज इट गेट्स इजीली डिजॉल्व्ड या सोल्यूबलाइज्ड इनसाइड दी वाटर. ओके. देन दे शुड बी अप्लाइड विथ प्रॉपर डोज. प्रॉपर डोसेज इज मस्ट, प्रॉपर टाइमिंग इज मस्ट, ठीक है, प्री एंड पोस्ट एप्लीकेशन. फाइन. ये सारे जो उसका प्रॉपर व्हाट यू कैन से, हाउ यू आर यूजिंग इट, है ना, हाउ यू आर प्रिपेयरिंग, हाउ यू आर यूजिंग, इन हाउ मच क्वांटिटी यू आर यूजिंग, दैट इज मस्ट, दैट शुड बी कंसीडर्ड. फाइन. अगर आप प्रॉपर डोज में उसका यूसेज नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स इफ यू आर यूजिंग दिस केमिकल फर्टिलाइजर इन अ वेरी लार्ज अमाउंट, तो क्या हो सकता है, वो वेस्ट ही है ना एक तरीके का. जितना रिक्वायर्ड है प्लांट्स को या क्रॉप्स को, दैट विल बी यूटिलाइज्ड, और जितना रिक्वायर्ड नहीं है वो क्या होगा, इट विल गो इनसाइड दी वाटर एंड इट कैन पोल्यूट दी वाटर. अभी जो हमने डिस्कस किया ये सारी चीज़ें हो सकती है, राइट. तो ये थोड़ा उसका क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज हो जाएगा. देन एग्जाम्पल दिया है फर्टिलाइजर्स में, वॉश्ड अवे बाय एक्सेसिव इरीगेशन, दिस कॉजेज वाटर पोल्यूशन, है ना, इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन जैसा प्रॉब्लम हो सकता है. ओवर यूज़ कर रहे हो अगर आप फर्टिलाइजर्स का, तो इट कैन रिड्यूस द सॉइल फर्टिलिटी, राइट. ओवर यूज़, ज़रूरत से ज़्यादा अगर फर्टिलाइज़र हम प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट्स को, क्रॉप्स को, तो इट कैन रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय डिप्लीटिंग द ऑर्गेनिक मैटर ऑल्सो, एज वेल एज जो यूजफुल सॉइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उनका भी क्या हो जाएगा, उनकी किलिंग हो सकती है इनसाइड दी सॉइल. ओके. तो ये चीज़ ना हो, सो दैट इज़ वाई वी शुड स्विच टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग बाय यूजिंग द ऑर्गेनिक मैन्योर रादर देन यूजिंग द केमिकल फर्टिलाइजर्स. ठीक है. फर्टिलाइजर्स आर शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, बट मैन्योर्स की अगर बात करें तो इट कैन प्रोवाइड दी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स टू द सॉइल ऑल्सो, टू द क्रॉप्स ऑल्सो. इज दैट क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा इरीगेशन, ठीक है, दैट वे विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट पीरियड. ओके, नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.